बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का सेशन पंचम जमात के लिए है। एनिमल्स वर्ल्ड ऑन अर्थ फॉर स्टैंडर्ड 5। अपने माहौल और उसमें पाई जाने वाली चीजों से तलबा का तारुफ पिछली सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। जमीन पर के जानदार में जमीन की पैदाइश, जमीन पर जानदारों की पैदाइश और जमीन पर जानवरों की दुनिया में आज हम जानवरों की बाज़ खुसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जमीन की पैदाइश। हमारे जहनों में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते रहते हैं। मसलन हम सब जिस ज़मीन पर रहते हैं वो कैसे वजूद में आई, कब वजूद में आई, आज वो जैसी है क्या इब्तिदा से ऐसी ही है या बदल गई है। अगर ये तब्दील हो गई है तो वो ख़ास तब्दीलियाँ कौन सी हैं। साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गिर्दो गुबार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए। क्या आप जानते हैं उनके नाम? यकीनन जानते होंगे। सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारों के नामों से आप वाकिफ हैं। याद कीजिए आपने कहाँ पढ़ा है। इसी साल माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में पहले सबक में ही हम हमारी ज़मीन, हमारा निज़ाम शमसी में इन सैयारों के नामों से वाकिफ हो चुके हैं। आइए एक बार हम उन्हें दोहराते हैं। उतारिद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून। ये है हमारा निज़ाम शमसी। आइए एक बार इनके अंग्रेजी नामों से भी वाकफियत हासिल कर लेते हैं। उतारिद को कहते हैं मरक्यूरी और ज़ोहरा को वेनस।
اور ہماری زمین کہلاتی ہے ارتھ. مریخ یعنی مارس اور مشتری کو کہتے ہیں انگریزی میں جوپیٹر. زحل ہے سیٹرن اور یورینس کو یورینس کہتے ہیں. نیپچون انگریزی میں نیپچون کہلاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا نظام شمسی. اور ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ ہم سب روئے زمین پر رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے. زمین کی طرح دوسرے 7 سیارے بھی سورج کے گرد گردش کرتے ہیں. زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں انسانی زندگی کا وجود پایا جاتا ہے. دراصل جانداروں کے لیے موافق درجہ حرارت، آکسیجن، پانی صرف زمین پر ہی موجود ہے. اس لیے تمام سیاروں میں سے زمین پر جاندار موجود ہیں. دراصل زمین کی پیدائش کے بعد اس کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہونے کو تقریباً 80 کروڑ سال لگے. ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ پانی میں پہلے مختلف قسم کے یک خلوی جاندار پیدا ہوئے. پروٹوزوا نام سے پہچانے جانے والے اس یک خلوی جاندار سے دھیرے دھیرے کثیر خلوی جاندار پیدا ہوئے. خلیے سے کیا مراد ہے؟ انگریزی میں سے ہم سیلز کہتے ہیں. یہ جو سیلز ہیں یہ دراصل بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جانداروں کے لیے. جس طرح عمارت یا مکان کی تعمیر کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اینٹیں رکھی جاتی ہیں، برکس رکھے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا جسم جو ہے اور دیگر جانداروں کا بھی جسم یہ بہت سارے سیلز سے مل کر بنتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ جو سرخ رنگ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ہمارے خون میں پائے جانے والے ریڈ بلڈ سیلز ہیں. تو کیا یہ کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، یہ کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. یک خلوی جاندار انتہائی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹرز اس کے خون کی جانچ کے لیے کہتے ہیں. مریض کے خون کی جانچ اسی آلے یعنی مائکروسکوپ میں ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ خوردبین میں ہمارے بلڈ سیلز کس طرح دکھائی دیتے ہیں.
ہمارے اطراف بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں جاندار ہیں اور کچھ بے جان. جانداروں میں نباتات اور حیوانات کا شمار ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہیں اپنے آس پاس بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگلات میں بھی بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں. مختلف قسم کی نباتات بھی آپ نے دیکھی ہیں. پھل اور پھول لگتے ہیں ان میں. اور جانداروں میں ہم انسانوں کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ تو تھیں جاندار چیزیں جو ہمارے ماحول میں موجود ہیں. اب بے جان اشیاء کون کون سی ہیں؟ بے جان اشیاء دو قسم کی ہیں. ایک تو جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، انہیں ہم مصنوعی اشیاء کہتے ہیں، اور ایک قدرتی طور پر جو ہمیں عطا کردہ ہیں قدرتی. مصنوعی میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ موٹر کار، موبائل فون، کتابیں، قلم اور بھی کئی چیزیں، یہ سب مصنوعی بے جان اشیاء ہیں. اور قدرتی چیزوں میں ابھی آپ نے دیکھا آبشار ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، چٹانیں ہیں، یہ سب قدرتی اشیاء ہیں جو ہمارے ماحول میں موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے زمین پر کے جانداروں کی. تمام جانداروں میں کچھ اہم خواص ہوتے ہیں. تو آئیے ہم جانداروں کی ان خصوصیات کا مطالعہ کریں. مگر مطالعہ کرنے سے پہلے آئیے ان جانوروں کو ہم ذرا ایک بار ان کے قدرتی ماحول میں دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی آپ نے زمین کے خوبصورت نظارے دیکھے. زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی دنیا میں جانور اور نباتات ہوتے ہیں. بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے جانوروں کے ناموں سے بھی آپ واقف ہیں. آئیے کچھ جانوروں کو ہم ان کے قدرتی ماحول میں دیکھتے ہیں.
जो जानवर अभी आपने देखे, इनके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं और इनकी कुछ खुसूसियात भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम जानवरों की खुसूसियात की। जानवरों में ऐसे तो बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, मगर हम 3 अहम खुसूसियात का जिक्र करेंगे। नंबर 1 अमल तनफ़ुस, नंबर 2 नक्लो हरकत और नंबर 3 अफ़ज़ाइश नस्ल। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यह अमल तनफ़ुस क्या है और किस तरह अंजाम पाता है। तनफ़ुस जानदारों की अहम खुसूसियत है। जितने भी जानदार हैं उनमें तनफ़ुस का अमल मुसलसल जारी रहता है। गैर जानदारों में अमल तनफ़ुस नहीं होता। जो बेजान अशिया हैं उनमें अमल तनफ़ुस नहीं होता और तनफ़ुस के लिए हर जानदार को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इंसानों में आप देखें अमल तनफ़ुस किस तरह होता है। आप सब ये वीडियो देखते देखते खुद भी गौर कर सकते हैं कि किस तरह आप ऑक्सीजन गैस नाक के जरिए अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं अमल तनफ़ुस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आप देखते हैं हमारे फेफड़े जो हैं, जो अमल तनफ़ुस में अहम रोल अदा करते हैं, कैसे फूल जाते हैं और जब सांस हम खारिज करते हैं तो ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अमल तनफ़ुस फेफड़ों की मदद से अंजाम पाता है। नाक के जरिए हम ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के अंदर भरते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इंसानों की तरह अगर हम जानवरों में देखें तो उनमें अमल तनफ़ुस होता है। अब चूहा देख लें आप, चूहे में भी फेफड़े होते हैं और इन फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन गैस लेते हैं जिस्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। चूहे के अलावा घोड़ा हो या कुत्ता हो या बैल हो, ये सारे जानवर भी और इनके अलावा भी दीगर जानवर अपने फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये घोड़े के फेफड़े हैं, तीर के निशान से बताया हमने, और यहाँ ये कुत्ते के फेफड़े जिस्म में होते हैं। यहाँ इनकी मदद से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इन मछलियों को देखकर आपके जहन में यकीनन ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या मछलियों में भी अमल तनफ़ुस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मछलियां पानी में मौजूद ऑक्सीजन जज़्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं, मगर ये अमल जिस तरह इंसान और दीगर जानवरों में फेफड़ों की मदद से होता है, मछलियों में इस काम के लिए गलफड़े होते हैं।
तो गलफड़ों की मदद से मछलियां अमल तनफ़ुस अंजाम देती हैं। तो खुश्की और तरी पर रहने वाले जानदार तो सांस लेते हैं। मेंढक खुश्की और तरी दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी। तो जब जमीन पर होता है तो अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेता है, और पानी में होता है तब अपनी जिल्द की मदद से। मगर अमल तनफ़ुस मेंढक में भी अंजाम पाता है। तो तनफ़ुस जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। नबातात का शुमार भी जानदारों में होता है। नबातात अमल तनफ़ुस अपने आज़ा के बहुत बारीक सुराखों की मदद से अंजाम देते हैं। तो अमल तनफ़ुस जानवरों की एक अहम खुसूसियत है। जानवरों में अमल तनफ़ुस मुसलसल जारी रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ देर सांस ली और उसके बाद रोके रहे। अगर थोड़ी देर आप अपनी सांस रोके रहें तो आपको घुटन महसूस होगी। इसी तरह जानवरों में भी अमल तनफ़ुस बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और ये अमल मुसलसल जारी रहता है। और इस अमल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये था अमल तनफ़ुस जानवरों की एक बहुत अहम खुसूसियत। अब दूसरी खुसूसियत जानवरों की, नक्लो हरकत। क्या मतलब है नक्लो हरकत का? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, दौड़ भाग करते हैं। यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चल रहे हैं, एक शख्स दौड़ रहा है। आपने देखा है कि मछलियां पानी में तैरती हैं, मेंढक फुदकता है, तितली उड़ती है, परिंदे भी उड़ते हुए आपने देखे हैं। तो आदमी चलता है, मछली पानी में तैरती है, मेंढक फुदकता है, तितली उड़ती है। ये सांप देख रहे हैं आप, ये कैसे रेंग रहा है। दूसरी तरफ केचवे को भी आप रेंगता हुआ देख सकते हैं। तो तैरना, फुदकना, उड़ना, रेंगना और चलना, इन अफ़ाल को हरकत कहते हैं। तो तैरने, फुदकने, उड़ने, रेंगने, चलने के अफ़ाल हरकत कहलाते हैं। सब जानदार अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। आप खुद अपनी मिसाल ले लीजिए। हम जरूरत के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने काम अंजाम देते हैं। अगर घर में भी आप हैं तो घर में भी आप अपनी मर्जी के तहत एक जगह से दूसरी जगह कभी उठकर बैठते हैं, कभी लेटते हैं। कोई चीज लानी हो तो बावर्ची खाने तक जाकर वो चीज ले आते हैं। इंसानों की तरह दीगर जानदार भी नक्लो हरकत करते हैं, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ये देखें जरा इन जानवरों को,
यहाँ घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। हाथी अपनी सूंड से पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तेज रफ्तार जानवर चीता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। कंगारू को देख रहे हैं आप यहां पर दौड़ते हुए। और ये शेर आराम से चलते हुए। तो सब जानवर अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इस मोर को देखें आप, जब इसका जी चाहा अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। तो जानवरों में नक्ल हरकत की एक अहम वजह है ग़िज़ा का हुसूल। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक्ल हरकत करते हैं। वो दीगर वजूहात क्या हो सकती हैं? कभी खुद को दुश्मन से बचाने के लिए, कभी मौसम के असरात से खुद को महफूज रखने के लिए, जिस तरह ये परिंदे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जानवर अपनी मर्जी से हरकत करते हैं। और अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी और एक अहम खुसूसियत की, वो है अफज़ाइशे नस्ल। जानदारों में अफज़ाइशे नस्ल को समझने से पहले नबातात की इन मिसालों को समझ लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नबातात आपने अपने आसपास देखे होंगे। ये देखें आम का दरख्त, और इसमें क्या लगे हुए हैं? ये आम के दरख्त से तो हमें आम ही मिलेंगे। और सेब सेब के दरख्त से मिलते हैं। केले के दरख्त से हम केले हासिल कर सकते हैं। फलों के अलावा फूलों पर भी यही मिसाल सादिक आती है। गुलाब के पौधे से गुलाब के फूल, और गेंदे के सूखे फूल के बीज से गेंदे के कई पौधे उगाए जा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आम के पेड़ से हमें सेब मिले, केले के पेड़ से हमें जामुन मिले। ऐसा कभी होता है भला? बिल्कुल नहीं। गुलाब के पौधे से गुलाब, गेंदे के पौधे से हमें गेंदे के फूल ही मिलते हैं। तो जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करते हैं। इस अमल को तौलीद या अफज़ाइशे नस्ल कहते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर ये भी चिड़िया की तरह उड़ने लगेंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखें बिल्ली का बच्चा कैसे मजे से सो रहा है। यहाँ कुत्ते के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये बतख के बच्चे पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अभी छोटे हैं मगर बड़े होकर बिल्कुल बतख की तरह दिखेंगे। तो कुत्ते हो, भेड़ हो, घोड़ा हो या हो बंदर, ये सब जानवर अपने जैसा दूसरा जानवर पैदा करते हैं। क्या कभी आपने देखा है या सुना है कि तमाम हैवानात खत्म हो गए?
نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جانور اپنے ہی جیسا دوسرا جانور پیدا کرتے ہیں اور اس عمل کو تولید یا افزائش نسل کہتے ہیں۔ انسان کے بھی چھوٹے بچے بڑے ہو کر وہ بھی والدین کی طرح کام کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں شکلیں بھی ملتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جاندار اپنے جیسا دوسرا جاندار پیدا کرتے ہیں، اس عمل کو تولید یا افزائش نسل کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اپنے ہی جیسا دوسرا جاندار پیدا کرنے کا عمل ہے، اس میں بعض جانور بچوں کو جنم دیتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بلی اور اس کا بچہ، یہاں ہاتھی اپنے بچے کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا مستی کرتے ہوئے، اسے آگے دھکیل رہا ہے۔ یہاں پانڈا کو دیکھ سکتے ہیں، صرف انسانوں کے بچے ضد نہیں کرتے، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسے پانڈا کا یہ چھوٹا بچہ اپنی جگہ سے ہلنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور یہ بلی کے بہت سارے بچے۔ تو بعض جانور بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو کتا ہو یا بلی، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، گدھا ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، بندر ہو، جراف ہو، شیر ہو یا ہاتھی، یہ ایسے جانور ہیں جو اپنے جیسے چھوٹے بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو جانوروں کی نسل سے تعلق رکھنے والے بعض جانور اپنے جیسے چھوٹے بچے پیدا کرتے ہیں، اور بعض جانور انڈے دیتے ہیں، پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مینڈک آپ نے دیکھا، سانپ ہے، کچھوا ہے، یہ انڈے دیتے ہیں اور پھر ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مرغی، چڑیا، کوا، کوئل، یہ سب پہلے انڈے دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں انڈے سینا انہیں کہتے ہیں۔ اس طرح مرغی بیٹھتی ہے انڈوں پر اور کچھ دنوں بعد اس میں سے یہ چوزے باہر آ رہے ہیں۔ تو انڈے سینے پر ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ یہ دیکھیں کچھوے کے انڈے سے چھوٹا سا کچھوا باہر نکل رہا ہے، اور یہ سانپ کے انڈے میں سے سانپ کا بچہ باہر آ رہا ہے۔ تو یہ تھا تولید یا افزائش نسل جسے ہم کہتے ہیں۔
اس معلومات کے ساتھ آج ہم یہیں رکتے ہیں. And now it's activity time. آپ کی درسی کتاب میں آپ کے لیے عملی کام دیا ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ عملی کام کیا ہے. مختلف جسامت کی گیندوں کی مدد سے نظام شمسی کا ماڈل تیار کیجیے. ارے واہ، یہ تو بڑی ہی دلچسپ سرگرمی ہے اور ایسی کوئی مشکل بھی نہیں ہے. آپ کی آسانی کے لیے ہم نے انٹرنیٹ پر موجود بچوں کے تیار شدہ کچھ ماڈلز کی امیجز کو آج کے پریزنٹیشن میں شامل کیا ہے. آپ دیکھنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے، چھوٹی بڑی گیندوں کی مدد سے کس طرح نظام شمسی کا ماڈل تیار کیا گیا ہے. ایک اور تصویر دیکھیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیندوں کو گلاسز پر رکھا ہوا ہے. آپ کاغذ کے گلاس استعمال کر سکتے ہیں، اس پر گیندوں کو رکھ کر نظام شمسی کا ماڈل تیار کر سکتے ہیں. اور گلاسز پر آپ دیکھ رہے ہیں سیاروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ایک اور ماڈل دیکھیے. یہاں پر سٹینڈ کی مدد سے ان گیندوں کو، جو کہ دراصل مختلف سیاروں کو ظاہر کر رہی ہیں، کھڑا کیا ہے. تو آپ بھی اس طرح نظام شمسی کا ماڈل اپنی سہولت سے اور جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کی مدد سے تیار کرنے کی کوشش کیجیے. ہمیں یقین ہے کہ اب نظام شمسی کا ماڈل تیار کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو آپ تیار کر لیں گے؟ ویری گڈ. اور آپ چاہیں تو اپنے بنائے ہوئے نظام شمسی کے ماڈل کی تصویر ہمیں اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.